Okay, so as we discussed yesterday about EIGRP load balancing, we'll be digging a little bit deeper into that. The second thing is EIGRP root failure scenarios, where we will discuss about how it sends out queries and gets back reply from neighbors, and how exactly what is the process of route recovery, or identifying an alternate route if in case west path goes down. So we'll go a lot deeper into that. Then EIGRP stub. I'm very much sure in OSPF CCNA syllabus, you guys must have heard about OSPF stub. You might also have heard and done a EIGRP stub theory and lab in CCNA. If in case it's not clear, we'll anyways going to repeat this, so no issues. The fourth one is EIGRP path manipulation. So this is something which we'll be discussing, and this is more or less related to changing the EIGRP metric on a particular path to make it best path, or to if I don't want any traffic to move to a particular path, then how we can actually manipulate the traffic from using that particular link. So this how we can do, and how it can be achieved. This all we'll be discussing today. So definitely there will be some labs. So without wasting any moment further, we'll directly jump into the topics. All right. So for lab, as I have already mentioned earlier, we'll be using GNS. Okay, it's a virtualization software, as most of you already know about. So we'll be using GNS, and guys, you all mute yourself. Thank you. Sir Pushkar, this side, your voice is not so clear. I mean, there's some echo is coming. Is it? Let me see. Let me check my audio settings. Just a moment. Seems good. Is it a problem with everyone, or it's just an issue with Pushkar? Can someone please acknowledge? It looks better now. Maybe. Okay, wait. Let me use a Probably different. it's the internet fluctuation, sir. It's fine because I can hear it clearly without any echo or without any disturbance. Is it better probably now? the internet fluctuation. Yeah, it's much better. I mean, far better. All right then. Okay. So yeah. All right. So yesterday we already discussed about EIGRP is capable of doing load balancing. So what type of load balancing it is capable to do? It can do an equal path load balancing as well as unequal path load balancing. So लोड बैलेंसिंग का सिनेरियो आपने रिप में अगर देखा हो तो रिप में हॉप काउंट जिन पाथ्स पे इक्वल होता है उस पे लोड बैलेंसिंग कर देते हैं, है ना. ओएसपीएफ में जिन पाथ्स पे कॉस्ट इक्वल होता है उस पे कर देते हैं. ईआईजीआरपी में भी मैट्रिक जिस पाथ पे इक्वल होगा उस पे लोड बैलेंसिंग हो जाएगी. लेकिन अगर इक्वल नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट कोई अनइक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग नहीं सपोर्ट होती है, वो आपको करना पड़ता है. ठीक है. तो लोड बैलेंसिंग समझने से पहले, ट्रैफिक इन लिंक्स पे डालने से पहले हम लोग समझेंगे EIGRP का फिजिबिलिटी कंडीशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की क्लास का. फिजिबिलिटी कंडीशन. ओके, फिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में हमने कल कुछ एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था कि फिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, फिजिबल डिस्टेंस क्या है, सॉरी फिजिबल सक्सेसर क्या है. सो लेट मी टेल यू अ लिटिल about the terminology which we are going to use
with respect to EIGRP paths, best path, second best path, whatever paths, then how these best paths are identified and taken into routing table and so on and so forth. So let me give you a quick idea of that. So in EIGRP, there are a few things which you can note down. The very first thing is best path is called as successor. Okay. Metric of best path is called as feasible distance. ये चीज ध्यान रखना ना, ये मालूम होगी आप में से बहुत लोगों को जिन्होंने CCNA में EIGR भी पढ़ा है, but still I would like to repeat it. What is a successor? A successor is best path. Like in our example, if you see here, we have router 1, router 5. Let's say there is a network hanging behind router 5. Router 5 के आगे कोई network है. Let's say, you know, here we have a network. Let's say this network is 100.1.1.0/24. Okay, this network lies behind R5. R5 के पीछे ये network लगा हुआ है और इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए R1 के पास में 3 रास्ते हैं, वाया R2, वाया R3, वाया R4. Okay, so which path R1 will take? Definitely the best path, right? And how it will calculate the best path? By default, we discussed yesterday, bandwidth and delay. इन दोनों को यूज करके वो निकालता है बेस्ट पाथ मैट्रिक, ठीक है? और जिस पाथ का मैट्रिक कम होगा वो बेस्ट पाथ कंसिडर की जाती है. Now in this situation, in this current diagram, let's take some values like best path निकालने के लिए हम लोग कुछ वैल्यूज मेट्रिक वैल्यूज पुट करते हैं. जैसे R5 से 100 नेटवर्क तक का मेट्रिक है 1000. ओके, R2 से R5 तक का EIGRP मेट्रिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? हर राउटर अपने नेबर तक पहुंचने का मेट्रिक निकाल लेता है. एक्चुअल में वो मेट्रिक निकालता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने का, टोटल मेट्रिक जिसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन हर राउटर से अपने नेबर तक का भी एक मेट्रिक होता है, ठीक है? उसको वो ऐड करता जाता है. जैसे R1 को पहुंचना है 100 नेटवर्क तक, तो R5 से 100 तक का जो मेट्रिक है उसमें ऐड कर देगा R2 से R5 तक का जो मेट्रिक है उसमें ऐड हो जाएगा R1 से R2 का जो मेट्रिक है. तो दिस मेट्रिक विल द टोटल मेट्रिक विल बी कंसिडर्ड, है ना? सारा मेट्रिक ऐड करके और फिर वो आपको फाइनल वैल्यू देगा R1 में. लेट्स टेक एन एग्जांपल वेयर R5 से 100 नेटवर्क तक का मेट्रिक EIGRP मेट्रिक है 1000. R2 से इधर पहुंचने का मेट्रिक है लेट्स से 5000. इधर से R1 से R2 तक ये पहुंचने का मेट्रिक है लेट्स से 7000, ठीक है? R3 से R5 तक का मेट्रिक है लेट्स से 8000. R1 से R3 का मेट्रिक कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे 10,000, ठीक है? R4 से R5 तक का मेट्रिक है लेट्स से 7000. और R4 से R1 का जो मेट्रिक है वो हम लोग सॉरी ये वैल्यू में थोड़ी हायर वैल्यू ले लेता हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, 13,000 लेट्स से. और R1 से R4 तक का मेट्रिक है लेट्स से 8,000, व्हाटएवर. So these are the metric values, EIGRP metric values, ठीक है? Between these paths, on these paths. To reach to 100 network from R5, the metric is 1000. To reach to 100 network from R2 is 5000 plus 1000 means total metric is 6000 from R2 to 100 network. From R1 to 100 network, the total metric is 13,000. 7,000 plus 5,000 plus 1,000. Okay, so I hope you all have got at least this part of it. So the next thing is, now we have metric EIGRP metric calculated for all three paths. तीनों paths के लिए metric calculate हो गया. तो best path जो है वो कौन सा है? तो एक टेबल बनाएगा
ठीक है, R1 की बात कर रहा हूं मैं अभी, हर राउटर करेगा यही काम। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ R1। ठीक है, R1 एक टेबल बनाएगा, उस टेबल में एंट्री क्या करेगा, उस टेबल में एंट्री करेगा, लेट्स से 3 कॉलम्स, फर्स्ट विल गो विद, ऑलराइट 4 कॉलम्स बनाते हैं। तो राउटर जो है वो कहेगा भाई एक नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, नेटवर्क कौन सा है अभी मेरे पास में, 100 नेटवर्क, 100.1.1.0 ये वाला। ठीक है, एक नेटवर्क 100 तक पहुंचने के लिए एक होता है जी रिपोर्टेड डिस्टेंस, ठीक है जी, और एक होता है जी फिजिबल डिस्टेंस। ओके, एक होता है जी फिजिबल डिस्टेंस, एक होता है रिपोर्टेड डिस्टेंस। अभी आते हैं इन पे भी, आपको मालूम होगा या तो पहले ही, है ना। सो एंड व्हाट एल्स इज फिजिबिलिटी कंडीशन को भी हम लोग इस टेबल में डाल देते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है जी, तो R1 से, ये R1 टेबल बना रहा है, R1 से 100 नेटवर्क तक के लिए वाया R2 रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या है। अब रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या होती है, द मैट्रिक फ्रॉम नेबर टू डेस्टिनेशन, नेबर से डेस्टिनेशन के बीच का जो मैट्रिक होता है EIGRP मैट्रिक, वो होता है रिपोर्टेड डिस्टेंस या एडवर्टाइज डिस्टेंस। इसको दोनों में से कोई नाम से हम लोग बोल सकते हैं। तो R1 से 100 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए वाया R2 रिपोर्टेड डिस्टेंस कितना है, रिपोर्टेड डिस्टेंस फिर R2 से 100 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए 5000 प्लस 1000। तो R2 वाया R2 द रिपोर्टेड डिस्टेंस, the distance which R2 is reporting to R1, that to reach to 100 network, this is the metric। ठीक है, ये है साहब। तो ये हो गया वाया R2। वाया R3 कितना है, reported distance 8000 plus 1000, so the total distance is via R3 is 9। ठीक है, म्यूट कर लो बलराम। देन द थर्ड पाथ इज वाया R4। तो R4 से रिपोर्टेड डिस्टेंस कितना है, 13000 प्लस 1000, इट्स 14000। ठीक है, सो वाया R2, वाया R3, वाया R4। ठीक है, ये रिपोर्टेड डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस, इसको फिजिबल डिस्टेंस की जगह मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ, टोटल डिस्टेंस, सो दैट यू वोंट बी गेट कंफ्यूज। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ इस पाथ का, R1 से 100 नेटवर्क तक का 7000 प्लस रिपोर्टेड डिस्टेंस यानी कि 13000। वाया R3 it's 10,000 plus reported distance 9,000, that means 19,000। Via R4 it is 8,000 plus 14,000, that is 22,000। ओके, सो तीनों पाथ का हमारे पास में टोटल डिस्टेंस आ गया। अब इन तीनों में से बेस्ट पाथ कौन सा है, वो पाथ जिसका मैट्रिक सबसे कम है, दैट इज द बेस्ट पाथ। और सबसे कम मैट्रिक किसका है, वाया R2 विच इज 13,000। ठीक है, R1 से 100 नेटवर्क तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं, तीनों में से बेस्ट पाथ कौन सा है, वो पाथ जिसका मैट्रिक कम है, और मैट्रिक कम किसका है, वाया R2, सो विच इज 13,000। ओके, हमने ये बात कही थी कि EIGRP में जब नेबरशिप बनेगी R1 की R2 से, R3 से, R4 से, तो ये सारे के सारे राउटर्स जो है वो एक दूसरे से अपना नेटवर्क इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ठीक है, सो R2 विल सेंड इंफॉर्मेशन टू R1, R3, R4, सबको मालूम है 100 नेटवर्क के बारे में, तो R1 के पास में R2, R3, R4 सबसे इंफॉर्मेशन मिलेगी, है ना, तभी तो वो ये कैलकुलेशन कर रहा है। तो यानी टोपोलॉजी टेबल जो बनेगी, जो ये टोपोलॉजी टेबल बनाएगा R1, वो टोपोलॉजी टेबल में क्या ये तीनों राउट्स होंगे, तीनों रास्ते होंगे। हाँ, हमने तो बात करी थी टोपोलॉजी टेबल में सब होते हैं, मैप बनता है, ये रास्ता वो रास्ता इधर उधर सारी चीज, लेकिन यहां पर एक चीज जो आड़े आती है वो क्या है, फिजिबिलिटी कंडीशन। ये तीनों रास्ते टोपोलॉजी टेबल में हो भी सकते हैं और नहीं भी
हो कब सकते हैं? जब ये तीनों रास्ते फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। और ये फिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? फिजिबिलिटी कंडीशन कहती है कि साहब जो भी पाथ का रिपोर्टेड डिस्टेंस, इफ इट इज लेस देन और इक्वल्स टू फिजिबल डिस्टेंस, अगर किसी रास्ते का रिपोर्टेड डिस्टेंस इज लेस देन और इक्वल्स टू फिजिबल डिस्टेंस, देन दैट पाथ इज eligible to be in topology table as a successor path. एक बार फिर से मैं बताता हूं, हमने इस डायग्राम में देखा कि तीन रास्ते हैं R1 से 100 नेटवर्क के लिए, वाया R2, वाया R3, वाया R4, तीनों रास्तों का हमने टोटल मैट्रिक निकाल लिया। बेस्ट पाथ वाया R2 है, ठीक है, और इस पाथ को जो वाया R2 है इसको कंसिडर करेगा हमेशा R1 100 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए, और इसे ही हम लोग बोलते हैं फिजिबिलिटी डिस्टेंस, ठीक है, फिजिबल डिस्टेंस, ठीक है, बेस्ट पाथ, सक्सेसर रूट, ठीक है, इसी को बोला है सक्सेसर, इसी को बोला है फिजिबल डिस्टेंस, ठीक है, जो मैट्रिक है इसकी, इसको बोला है फिजिबल डिस्टेंस, क्या है 13,000। सो अब ये जो बाकी दोनों रास्ते क्या है, ये टोपोलॉजी टेबल में रहेंगे। राउटिंग टेबल में तो बेस्ट पाथ आता है हमेशा, तो ये आ जाएगा, तो बाकी दोनों का क्या करें? तो क्या बाकी दोनों रहेंगे? तो जी रहना नहीं रहना डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे, जो जिसको हम लोग फिजिबिलिटी कंडीशन बोल रहे हैं। रिपोर्टेड डिस्टेंस of the path, if the reported distance of a path is less than or equal to feasible distance, then that path will be considered to be in topology table. अगर रिपोर्टेड डिस्टेंस किसी रास्ते का फिजिबल डिस्टेंस के बराबर या उससे कम है तो उसको EIGRP की टोपोलॉजी टेबल में एंट्री मिल जाएगी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। मैंने कई बार आपको बोल दिया अभी, अब मैं आपको बता दूं। हम सबसे पहले लेते वाया R3 वाला पाथ, ठीक है जी। R3 पे रिपोर्टेड वाया R3 रिपोर्टेड डिस्टेंस कितना है? मैं R1 पर ही हूं अभी, ठीक है ना। R1 के नजरिए से मैं देख रहा हूं कि R1 की टोपोलॉजी टेबल में कि क्या ये तीनों होंगे? तीनों डेफिनेटली, ये एक तो होगा ही होगा जो बेस्ट पाथ है, और ये उधर राउटिंग टेबल में भी चला जाएगा। लेकिन क्या बाकी दोनों रास्ते टोपोलॉजी टेबल में होंगे? तो जी इस रास्ते की हम बात करते हैं, वाया R3 सबसे पहले। तो वाया R3 रिपोर्टेड डिस्टेंस कितना है साहब? 9,000। इज इट लेस देन और इक्वल टू फिजिबल डिस्टेंस? फिजिबल डिस्टेंस क्या है? 13,000। Is this condition true? Yes. So this path will be part of EIGRP's topology table in R1. ठीक है, R1 का जो EIGRP टोपोलॉजी टेबल बनेगा उसमें ये रास्ता रहेगा, ऑल्टरनेट पाथ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, R4, वाया R4 रिपोर्टेड डिस्टेंस इज 14,000। सो 14,000, is this less than or equal to 13,000? Is this condition true? No, right? 14,000 is greater than 13,000. So this path will not be able to make entry into R1's EIGRP topology table. To avoid loops in an EIGRP network, EIGRP network, this feasibility condition EIGRP uses. Now loop free environment रखने के लिए एक EIGRP नेटवर्क में फिजिबिलिटी कंडीशन का प्रावधान रखा गया। ऐसे ही हर कोई पाथ उठा के हम लोग नहीं डालेंगे। हो सकता है कई पाथ जो है उनका, अभी ये क्यों इसने किया, रिपोर्टेड डिस्टेंस जो है वो फिजिबल डिस्टेंस से कम होना चाहिए, इस पे हम लोग ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। अगर आपके पाथ का रिपोर्टेड डिस्टेंस बहुत ज्यादा है फिजिबल डिस्टेंस से, तो ये हो सकता है कि वो कोई बहुत लंबा घुमा के पाथ ले रहा है, हो सकता है वो पाथ पे आपके लूप बन जाए। अभी कैसे बनते हैं EIGRP में लूप, तो उसका हम लोग आज डिस्कस कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल इन ऑल दिस इज फिजिबिलिटी कंडीशन। सो हुआ क्या, हम लोग का राउटर 1 से 3 पाथ थे, और 3 पाथ में से एक बेस्ट पाथ मिला वाया R2, और जो बाकी 2 रास्ते थे उनमें से R3 वाला जो पाथ है दैट इज एलिजिबल टोपोलॉजी टेबल में एंट्री के लिए। R4 वाला पाथ नहीं है।
तो क्या ये पाथ कभी इसकी टोपोलॉजी टेबल में आएगा ही नहीं? जी आ सकता है। मान लो वाया R2 रास्ता फेल हो गया, ये वाला पाथ जो है वो ब्रेक हो गया, कहीं कुछ इशू आ गया, नाउ द नेटवर्क 100 इज नॉट रीचेबल थ्रू दिस पाथ फ्रॉम R1। तो क्या होगा? तो तुरंत R1 क्या करेगा, अपना टोपोलॉजी टेबल चेक करेगा, ये चेक करेगा कोई फिजिबल सक्सेसर है क्या। अभी ये जो हमारा दूसरा रूट था इसको क्या नाम दिया? फिजिबल सक्सेसर। पहला रूट क्या था? सक्सेसर रूट। दूसरा सेकंड बेस्ट पाथ इज फिजिबल सक्सेसर। तो ये फिजिबल सक्सेसर है, इसको उठा के तुरंत राउटिंग टेबल में डालेगा और सारा ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा 100 नेटवर्क के लिए टुवर्ड्स R3। तो ये तो हो गया। अब वो क्या करेगा? अब वो अपने ये जो वाया R4 जो रास्ता है, क्या अब ये फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? अभी फिजिबल डिस्टेंस क्या है? अब नया फिजिबल डिस्टेंस हो गया 19,000, है ना? तो रिपोर्टेड डिस्टेंस क्या है इस रास्ते का? 14,000। सो इज 14,000 लेस देन or equals to 19,000? Yes. So now this condition is satisfied और अब ये रास्ता जो है, ये पाथ जो है, it will go into EIGRP topology table. Any doubt in this? कोई डाउट है इसमें? All right. So आप लोग चैट पे यस नो लिख दिया करो, कम से कम 8-10 लोग लिखेंगे यस 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 यस, तो आई कैन अज्यूम कि मेजॉरिटी ऑफ गाइज आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, सो नो यस नो। अरे ये तो सभी नो ही बोल रहे हैं भाई। हु इज दिस आईफोन? Guys, you join using your real name so that I can actually understand who is typing yes, who is typing no. I don't know who is this iPhone user. So, okay, whatever. So there are majority of replies are no. So I'll explain it again. Once again, I'll explain it. Okay. So no worries. Okay, what is this? Pushkar, you got it. Very good. All right. So let's roll back a little. Let me remove all this stuff from this page. All right. Okay. And I do have this topology on my PPT, so it's easy for us to bring it up. All right, guys. So let me tell you again. Okay, so okay, so is no means no questions, or you didn't get the concept? Okay, yes means you got the things, no means you need explanation again. So just type no when you didn't get the point. अगर आ गया समझ में तो yes, है ना? कि just keep it simple. Okay. So guys, let's try again. Manthan is saying that no was for no questions. So बाकी लोगों के साथ भी यही है, no question. Okay, so say yes if you get the things. अगर समझ में आ गई तो बोल दीजिए yes. Thank God. Will save us at least 10-15 minutes. Thank you. So, all right. So we get the stuff. What exactly is EIGRP feasibility condition? Now, load balancing की हम लोग बात कर रहे थे. So let's say we'll take the same example. Okay. From R5,
Okay, there is a network connected down there. Either 100 network connected है 100.1.1.0. Okay, and okay, there are still some messages. OP. Okay, OP. So you didn't get the point. No problem. No problem. I'll quickly explain you again. EIGRP में जब हम लोग बात करते हैं मैट्रिक का, तो EIGRP में मैट्रिक कैलकुलेट होता है बैंडविड्थ प्लस डिले से बाय डिफॉल्ट. ठीक है, तो हमारे जितने भी पाथ हैं इस डिजाइन में, उन पाथ पे EIGRP चल रहा है सभी राउटर्स पे, तो उन पाथ्स का कोई ना कोई मैट्रिक होगा. जैसे R5 जो है, R5 से 100 नेटवर्क कनेक्टेड है इधर आगे कहीं, तो R5 से 100 नेटवर्क तक पहुंचने का let's say metric is 5000. इधर से let's say it is 6000. ठीक है, इधर से पहुंचने का let's say 7000. ठीक है ना. R3 से R5 तक का मेट्रिक भी हम लोग कुछ रख देते हैं, let's say 7000. anything, take any value, not a problem, because it's not the production environment. All right, so 10,000 या फिर इसको थोड़ा ज्यादा रख दें, let's make it 15,000, है ना, और इसको रख दो 4,000, whatever. So अभी R1 से 100 के लिए 3 रास्ते हैं, via R2. Via R2, what is the reported distance? Okay, so reported distance and total distance. Okay, feasible successor कौन है या नहीं है, बन सकता है, वो भी हम देखेंगे. तो via R2 reported distance कितना है? Reported distance is R1 की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, ये टेबल R1 में बन रही है, तो नेबर से डेस्टिनेशन तक का टोटल मैट्रिक. तो via R2 the total metric is 6000 plus 5000, which is 11,000. Okay, and let's make it little bigger. All right, so 11,000 is the reported distance and total metric कितना है? 11,000 plus 7,000. R1 से R2 के बीच का 7,000 है ना, तो 18,000. ठीक है. दूसरा via R3 reported distance is 12,000. ठीक है, via R3 7,000 plus 5,000 12,000, and total जो distance है उसमें 4,000 और ऐड हो जाएगा, which is 16,000. Okay, and via R4 this is 15 plus 5, 20,000 is the reported distance, and the total distance is 24,000. Okay, it's simple. So in this situation, the best path is via R3. ठीक है, the best path is via R3. So R3 जो है इसके थ्रू जो है हमारा टोटल मैट्रिक है वो है 16,000. So this will be the feasible distance and this is the successor route. Okay, so this is successor route, this is feasible distance. Now the question is ये तो राउटिंग टेबल में चला जाएगा, जो बाकी 2 रास्ते बचे वाया R2 वाया R4, क्या ये दोनों टोपोलॉजी टेबल में जाएंगे? क्योंकि EIGRP टोपोलॉजी टेबल भी बनाती है और उस टोपोलॉजी टेबल के अंदर हमने बात करी थी सारे रास्ते उसे मालूम होते हैं, लेकिन क्या ये रास्ता उसे मालूम है, क्या ये रास्ता उसकी टोपोलॉजी टेबल में है? तो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि हाँ होने तो चाहिए, लेकिन होंगे नहीं. लूप फ्री एनवायरनमेंट रखने के लिए एक EIGRP डोमेन में वो ये कहता है कि सारे रास्ते रखूंगा नहीं रखूंगा डिपेंड करता है फिजिबिलिटी कंडीशन पे. जो रास्ता वो फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसको मैं अपना टोपोलॉजी टेबल में डाल दूंगा, नहीं तो नहीं डालूंगा. तो फिजिबिलिटी कंडीशन क्या कहती है, उसका फॉर्मूला क्या है कि जो भी पाथ का रिपोर्टेड डिस्टेंस अगर फिजिबल डिस्टेंस से कम या उसके बराबर हुआ तो दैट इज एलिजिबल टू बिकम फिजिबल सक्सेसर, या टोपोलॉजी टेबल में जाने के लिए दैट पाथ इज एलिजिबल. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट. ये वाला जो वाया R2 वाला पाथ है इसका रिपोर्टेड डिस्टेंस कितना है? 11,000. तो यहां रख दो वैल्यू
11,000. Okay, is 11,000 less than or equals to feasible distance? Feasible distance क्या है? 16,000. क्या 16,000 से 11,000 कम या उसके बराबर है? हाँ जी, बिल्कुल कम है। तो ये फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ये राउटिंग टेबल में रूट चला जाएगा। दिस इज एलिजिबल। क्या ये रास्ते की बात करें अभी, तो इसका रिपोर्टेड डिस्टेंस कितना है? 20,000। क्या 20,000 जो है वो कम या बराबर है 16,000 के फिजिबल डिस्टेंस के? नहीं जी, ये तो ज्यादा है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये वाला रास्ता आपके राउटर की राउटिंग टेबल में, टोपोलॉजी टेबल में नहीं होगा। अब क्या ये रास्ता कभी भी नहीं आएगा आपके राउटर की टोपोलॉजी टेबल में? जी आ सकता है। कब? जब ये बेस्ट पाथ जो है ये फेल हो जाए, तो ये क्या करेगा? तुरंत अपना टोपोलॉजी टेबल में देखेगा ऑल्टरनेट रूट, क्या फिजिबल सक्सेस, सॉरी ये वाला जो फिजिबल वाया R3 पाथ जो है ये फेल हो गया, तो ये देखेगा क्या कोई फिजिबल सक्सेसर है? हाँ जी, फिजिबल सक्सेसर है, जो ऑल्टरनेट रूट है वाया R2, ये उसको तुरंत राउटिंग टेबल में डाल लेगा। ठीक है, तो आपका फिजिबल डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा? अब फिजिबल डिस्टेंस पहले था 16,000, लेकिन ये पाथ तो डाउन हो गया, तो अभी जो नया पाथ सेलेक्ट किया उसका मैट्रिक क्या है? 18,000, तो ये 18,000 बन जाएगा अब फिजिबल डिस्टेंस, यानी बेस्ट पाथ का मैट्रिक। तो क्या अभी ये R4 का एंट्री हो पाएगा टोपोलॉजी टेबल में? तो फिर से फॉर्मूले में रख लो, रिपोर्टेड डिस्टेंस कितना है इसका? 20,000। क्या 20,000 कम या बराबर है 18,000 जो कि फिजिबल डिस्टेंस है? तो उसने कहा नहीं, ये तो अभी भी ज्यादा है, तो जी अभी भी ये रूट की एंट्री यहाँ नहीं होगी। अगर मान लो यहाँ पर ये होता 10,000, अगर ये रिपोर्टेड डिस्टेंस जो है वो 10 + 5 सॉरी 15 + 5 20 है ना, अभी कितना हो गया? 15,000। हाँ, तो अभी कितना हो गया रिपोर्टेड डिस्टेंस? 10 + 5 15,000। अगर ये 15,000 होता इधर, है ना, तो 15,000 इज लेस देन और इक्वल्स टू 18,000। हाँ जी, बिल्कुल कम है। कम है तो जी ये फिजिबल सक्सेसर बन जाएगा, यानी कि फिजिबल डिस्टेंस बेस्ट पाथ इज वाया R2, बेस्ट पाथ इज वाया R2 इन केस इफ R3 goes down, है ना। बेस्ट पाथ इज वाया R2 and R4 will get a chance to get an entry. The path via R4 will get a chance to get an entry into EIGRP topology table of R1. So that's the concept. Okay, I hope now this is clear. Now we'll talk about OP. क्लियर है अभी या डाउट है? बताओ। All right. So the second thing is लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग जब हम लोग बात करते हैं EIGRP में, तो EIGRP इज केपेबल ऑफ डूइंग लोड बैलेंसिंग, अनइक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग। तो वो कैसे करता है? देखो, बाय डिफॉल्ट तो अभी ये बेस्ट पाथ है वाया R3। अगर किसी और पाथ का भी मैट्रिक, टोटल मैट्रिक जो है वो इसके बराबर होता, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करता है? पर पैकेट लोड बैलेंसिंग। ये क्या करता है? पर पैकेट लोड बैलेंसिंग, है ना। तो एक पैकेट इस पाथ पे डाल देगा, लेट्स से दोनों का मैट्रिक सेम है, एक पैकेट इस पाथ पे डाल देगा, एक इस पे, एक इस पे, फिर एक इस पे, ऐसा करके पर पैकेट लोड बैलेंसिंग ये बाय डिफॉल्ट करते हैं अगर इक्वल पाथ इनको मिलते हैं टू रीच टू अ डेस्टिनेशन। नाउ हमारे केस में अभी इक्वल पाथ नहीं है, अभी अनइक्वल पाथ है, और फिलहाल जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से ये दो रास्ते यूज हो रहे हैं, ये वाला और ये वाला यूज हो रहे हैं। मतलब राउटिंग टेबल में खाली वाया R3 है, लेकिन R2 टोपोलॉजी टेबल में, ये रास्ता तो अभी कहीं भी नहीं है, ना टोपोलॉजी टेबल में है ना राउटिंग टेबल में है। ठीक है, तो अभी ये दो यूज हो रहे हैं। तो अब हम लोग अनइक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वेरिएंस कमांड। वेरिएंस कमांड इन EIGRP। सो ये वेरिएंस क्या है, अब इसको समझना। वेरिएंस जो है वो कुछ नहीं है, एक वैल्यू है जो कि बाय डिफॉल्ट 1 होती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वेरिएंस 1 होती है।
आप इसको चेंज कर सकते हो, और वो चेंज करने से क्या होगा, यानी 1 से आगे 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो। तो ये चेंज करने से क्या होगा वो देखते हैं हम लोग। तो अभी इस सिचुएशन में फिजिबिलिटी डिस्टेंस क्या है, 4000 प्लस 7000 प्लस 5000 16,000। ठीक है, दिस इज माय बेस्ट पाथ एंड इट्स मेट्रिक इज 16,000। ये जो दूसरा पाथ है टोपोलॉजी टेबल में जो रखा हुआ है, इसका क्या मेट्रिक है टोटल, 18,000। ठीक है, फिजिबल सक्सेसर जो है वो है मेट्रिक 18,000। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सिर्फ ये वाला पाथ यूज होगा, इस पे कोई ट्रैफिक नहीं जाएगा अनटिल एंड अनलेस ये फेल होता है तो। या फिर मैं कहूं कि यार इतना मतलब मेरे पास में 2 रास्ते हैं, तो व्हाई टू वेस्ट दिस पाथ, एक्चुअली आई वांट टू यूटिलाइज दिस आल्सो, मेरे को ये भी यूज करना है, इसका भी पैसा भरता हूं मैं सर्विस प्रोवाइडर को, तो उसको भी यूज करना है। तो क्या करेंगे, लोड बैलेंसिंग करेंगे, है ना, थोड़ा ट्रैफिक इस पे थोड़ा इस पे। तो वो लोड बैलेंसिंग के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएंस यूज कर रहे हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग EIGRP में जाएंगे, राउटिंग प्रोसेस में। मैं जो CCNA तो हुई, आपको मालूम है कैसा होता है कंसोल। सो लेट्स से R1, ओके, एंड कॉन्फिग मोड पे आप एक EIGRP में जाके, ठीक है, EIGRP मोड में चले गए, राउटर EIGRP कमांड लगा के, और उधर हम लोग कमांड चलाएंगे वेरिएंस 2। ये मैंने लेट से कमांड चला दी। अब क्या होगा, वेरिएंस 2 करने से क्या होता है, जो फिजिबल डिस्टेंस था, यानी जो फिजिबल डिस्टेंस है विच इज 16,000, आपका राउटर इस 16,000 को मल्टीप्लाई करेगा किससे, 2 से। इस 16,000 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, जो कमांड में यहां दिया उससे मल्टीप्लाई किया। तो अभी ये कितना हो गया, 32,000। ठीक है, अब किसी भी पाथ का, किसी भी दूसरे पाथ का जिसका टोटल मैट्रिक 100 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए 32,000 या उससे कम है, उस पे लोड बैलेंसिंग करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो रास्ता है फिजिबल सक्सेसर, इसका मैट्रिक क्या था, 18,000। 18,000 जो है वो 32,000 से कम या उसके बराबर है, हाँ जी बिल्कुल कम है, तो इस पाथ पे लोड बैलेंसिंग करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये जो तीसरा रास्ता, मान लो इसका यहाँ पर रिपोर्टेड डिस्टेंस जो है वो मैं कर दूं, ये दिस इज 10,000, ओके, एंड दिस इज लेट्स से 8,000, ऐसा कुछ बना देते हैं। तो टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 5 15 प्लस 8 23,000। ठीक है, तो पहली बात तो क्या ये आपका टोपोलॉजी टेबल में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि रिपोर्टेड डिस्टेंस हो गया 15,000 विच इज स्टिल लेस देन 16,000। तो हाँ जी ये टोपोलॉजी टेबल में जाएगा। इसका टोटल मैट्रिक कितना है, 23,000 है। हाँ जी, तो क्या इस पे भी लोड बैलेंस होगा, हाँ जी इस पे भी लोड बैलेंस होगा, क्योंकि ये 32,000 से कम है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इधर मान लो ये 8,000 की जगह इधर होता 20,000। अब मैंने कहा कैलकुलेट करो, 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35, टोटल मैट्रिक हो गया 35,000। टोपोलॉजी टेबल में रहेगा, हाँ जी रहेगा, क्योंकि रिपोर्टेड डिस्टेंस 15,000 है विच इज लेस देन योर फिजिबल डिस्टेंस। तो क्या इस पे लोड बैलेंस करेगा, तो मैंने कहा लोड बैलेंस देखते हैं। टोटल मैट्रिक इज 35,000 विच इज लेस देन और ग्रेटर देन 32,000, 32,000 से ज्यादा है, तो इस रास्ते पे लोड बैलेंस नहीं करेगा। मैंने कहा मुझे तो इस पे भी लोड बैलेंस करवाना है, फिर आपके तो ये 2 ही रास्ते यूज हुए, ये वाला और ये वाला, ये तो अभी भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप यहाँ वेरिएंस 3 कर दो। 3 करते ही ये 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये 48,000 बन जाएगा, और 48,000 से तो ये कम है ना 35,000। तो अब हर वो रास्ता जिसका टोटल मैट्रिक 48,000 से कम या बराबर है, उस रास्ते से लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब ये तीनों रास्तों पे लोड बैलेंसिंग करेगा। Is this clear? Any doubt? राजेश बोलते हैं where will store third path? Where will it store third path? Nowhere. If third path is not
अगर थर्ड पाथ जो है वो फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो कहीं भी नहीं रहेगी, ना टोपोलॉजी टेबल में ना राउटिंग टेबल में। ठीक है, ये दो ही टेबल होती हैं, बाकी तो एक नेबर टेबल होती है, तो नेबर टेबल तो R4 से तो नेबर तो रहेगा ही, है ना। लेकिन जो रूट्स मिल रहे हैं R4 से R1 को, उनकी एंट्री ये टेबल में करेगा या नहीं, टोपोलॉजी टेबल या राउटिंग टेबल, वो डिपेंड करता है फिजिबिलिटी कंडीशन। ठीक है जी, फटाफट यस नो बोल दो, आगे बढ़े। All right. So the next thing is just a moment. Next thing is EIGRP रूट फेलियर सिनेरियो। तो रूट फेलियर सिनेरियो की जब हम बात करते हैं EIGRP में, तो लेट्स से okay, let me take another example. Let me clear this out and we'll take this as an example. Okay, so all right, yeah, that's good. So EIGRP में फेलियर सिनेरियोस की बात कर रहे हैं हम लोग। फेलियर सिनेरियोस मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये जो राउटर है R1, इस R1 से आगे इधर कोई नेटवर्क है 100 नेटवर्क 100.1.1.0, it's hanging out somewhere with R1 or somewhere else, R1 से आगे। तो इन सब के बीच जितने भी राउटर्स आपको दिख रहे हैं इस टोपोलॉजी में, R1, R2, R3, R4, सब पे EIGRP चल रहा है, सारा नेटवर्क कन्वर्ज्ड है। ओके, मालिक का एक क्वेश्चन है, हाउ विल लोड डिस्ट्रीब्यूशन हैपन। हाँ, दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई एक्चुअली फॉरगॉट टू मेंशन इट and I thought someone from the audience will ask this question. So how will load distribution happen between paths? तो देखिए क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे लोड बैलेंसिंग की, है ना, तो बेस्ट पाथ वाया R3 था, जिसका फिजिबल डिस्टेंस कितना था, इट वाज लेट्स से 10,000, है ना। सेकंड बेस्ट पाथ का 20,000, थर्ड बेस्ट पाथ का 30,000, है ना। हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं अपने हिसाब से। लेट मी इंसर्ट text. Where is text? Wait, text box. So via R1, via R2 it is via R3 it is 10,000. ठीक है, फिर the next one is via R2 it is, let's say, 20,000, and via R4 it is 30,000. ओके, सो तीन रास्ते हैं, तीनों का ये टोटल मैट्रिक है R5 से आगे जो 100 नेटवर्क कनेक्टेड है उस तक पहुंचने का। so, मैं वेरिएंस कमांड चला के तीनों पे लोड बैलेंसिंग करवा रहा हूं, तो होगा क्या, अभी R3 का जो कैपेसिटी है, R3 का जो कैपेसिटी है, क्योंकि ये बेस्ट पाथ है, इसका मैट्रिक कम है, तो जाहिर सी बात है इस पे बैंडविड्थ अच्छी होगी, इस पे डिले कम होगा, है ना। R2 वाला जो पाथ है वाया R2, उस पे बैंडविड्थ जो है वो इन कंपैरिजन टू R3 कम होगी, और हो सकता है डिले भी ज्यादा हो। वाया R4 थोड़ा और कम बैंडविड्थ होगी और डिले हो सकता है ज्यादा हो। तो कैपेबिलिटी इन लिंक्स की जो है वो इक्वल नहीं है। लोड बैलेंसिंग मैं करवा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इन तीनों को यूज करें ये ट्रैफिक भेजने के लिए, लेकिन तीनों की क्षमता जो है वो बराबर नहीं है। एक की कैपेसिटी जो है वो सबसे बढ़िया है, विच इज वाया R3। तो क्या ये बराबर बराबर काम सबको देगा? यानी जो पैकेट है, एक पैकेट R3 की तरफ फेंक दिया, एक R2, एक R4, फिर एक R3, फिर एक, पर पैकेट लोड बैलेंसिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या ऐसा होगा? तो बोला नहीं 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 नहीं, नहीं, ये तो अन्याय है ना, ऐसा करेंगे तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम।
क्योंकि R3 की कैपेबिलिटी वाया R3 जो रूट है उसका कैपेबिलिटी और वाया R2 और R4 जो है उनका तो अलग अलग है। तो बोला ठीक है, एक काम करेंगे, जो ज्यादा कैपेबल है उधर ज्यादा पैकेट फेंकेंगे, है ना। तो अगर ये मान लो R3 की तरफ 3 पैकेट भेजता है तो R2 की तरफ 2 भेजेगा, R4 की तरफ 1 भेजेगा, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली जो है अपना रेशियो कैलकुलेट कर लेता है बेस्ड ऑन द टोटल मेट्रिक ऑफ द पाथ। तो जब हम लोग लैब करेंगे तो आई विल शो यू द ट्रैफिक रेशियो, जो ये ट्रैफिक काउंट जो ये हर इंटरफेस पे लोड बैलेंसिंग के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो उधर अपने को देखने को मिलेगा, है ना। तो आई विल शो यू दिस। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, थैंक्स फॉर आस्किंग। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू this scenario. So in this scenario, we have 100 network hanging out with R1 somewhere. ठीक है, सभी राउटर्स पे EIGRP चल रहा है, कन्वर्जेंस हो गया है, ये सारे राउटर्स जो है they all know about this 100 network. ठीक है, R2 knows it via R1, R3 knows it via R2, R5 knows it via R3 and so on and so forth. Now ये नेटवर्क जो है, ये नेटवर्क तक का रीचेबिलिटी डाउन हो गया, मतलब दिस नेटवर्क इज डाउन नाउ। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से राउटर को पता लगेगा? ऑब्वियसली R1 को, इज द क्लोजेस्ट वन टू दिस नेटवर्क। सो R1 जो है उसका पास में इंफॉर्मेशन आया 100 नेटवर्क इज डाउन। अभी क्या होगा, R1 जो है वो देखेगा अपनी टोपोलॉजी टेबल में कि क्या 100 नेटवर्क तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता है। तो क्या है दूसरा रास्ता अभी? Is there any alternate path? No. Right? There is just one path. Via R2, R3, R4 किधर से भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसका टोपोलॉजी टेबल में दूसरा रास्ता तो नहीं होगा। जैसे ही नेटवर्क फेल होता है क्या करता है ये? जैसे ही कोई नेटवर्क का इंफॉर्मेशन आता है कि दिस नेटवर्क इज डाउन और नॉट रीचेबल, इट विल ट्राई टू गेट एन alternate path. Looking at its on topology table, if the entry, if a feasible successor route is not there in the topology table for that particular network, ये क्या करेगा? ये अपने पड़ोसियों को, अपने नेबर्स को क्वेरी भेजेगा। This guy will send a query. R1 will send a query to R2. क्वेरी में क्या कह रहा है कि भाई साहब मैं 100 नेटवर्क तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्या आपके थ्रू कोई दूसरा रास्ता है? डू यू नो एन ऑल्टरनेट पाथ टू रीच टू 100 नेटवर्क? तो R2 सोचता है, क्वेरी आया, अरे नहीं बाबा मैं तो खुद आपके थ्रू पहुंचता था, लेट मी आस्क माय नेबर्स। तो R2 क्या करता है? R2 वो क्वेरी को R3 और R4 को भेजता है। ठीक है जी, कि 100 नेटवर्क के लिए कोई तुम्हारे पास में ऑल्टरनेट रूट है तो बताओ। R3 और R4 दोनों के पास ऑब्वियसली कोई जवाब है नहीं अभी, वो अपने नेबर्स के पास भेजते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेरी जो है इट विल इवेंचुअली रीच टू ईच एंड एवरी राउटर इन दिस नेटवर्क, राइट। सो क्वेरी भेज दिया, अब रास्ते तो है नहीं, R5, R6, R7, R8 ये चारों जो है ये क्वेरी का रिप्लाई करेंगे। ये क्या करेंगे? ये रिप्लाई करेंगे कि साहब हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। R3, R4 दोनों को रिप्लाई मिला, ये वापस रिप्लाई किसको भेजेंगे? R2 को, कि साहब नहीं मिला, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। R2 जो है वो R1 को भेजेगा रिप्लाई कि साहब कोई रास्ता नहीं है। इसी दौरान जब ये सारा घटनाक्रम हो रहा था, जब ये नेटवर्क डाउन हुआ और सबसे पहले R1 ने R2 को क्वेरी भेजी, वो टाइम पे R1 क्या करेगा? 100 नेटवर्क जो इसकी राउटिंग टेबल में एंट्री हो रखी है 100 नेटवर्क की 100.1.1.0/24, उस एंट्री को एक्टिव मार्क कर देगा। यानी 100 नेटवर्क को एक्टिव मार्क करके, एक्टिव का मतलब नाउ ही इज एक्टिवली लुकिंग फॉर अ पाथ टू रीच टू दिस नेटवर्क। ठीक है, ये एक्टिवली इस नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता अभी ढूंढ रहा है ना। तो इसको एक्टिव मार्क कर देगा और क्वेरी भेजेगा। R2 भी इसको एक्टिव मार्क कर देगा, क्वेरी भेजेगा। ये सब लोग ऐसा ही करेंगे। ठीक है, रिप्लाई आएगा
तो रिप्लाई में अगर कोई रास्ता है ऑल्टरनेट, अगर रिप्लाई में किसी ने बोला कि हाँ साहब मेरे थ्रू कोई और दूसरा रास्ता भी है, तो उसको ये अपना टेबल में डाल लेंगे, अपडेट कर लेंगे, एक्टिव से उसको वापस से पैसिव मोड पे ले आएंगे। नहीं तो ये क्या करेंगे, रिप्लाई मिला कि साहब कोई रास्ता नहीं है, तो ये अपनी टेबल से उसको हटा देंगे। ठीक है जी, सिंपल है। नेटवर्क डाउन हुआ, RAR1 ने अपनी टोपोलॉजी टेबल में देखा कोई दूसरा रास्ता है जी, नहीं है, तो अपने पड़ोसी को क्वेरी भेजा, उस नेटवर्क को अपनी राउटिंग टेबल में एक्टिव मार्क किया, पड़ोसियों ने अपने पड़ोसियों को भेजा, उन्होंने अपने पड़ोसियों को, सबसे रिप्लाई आए और R1 के पास में इवेंचुअली इंफॉर्मेशन आई कि साहब दूसरा रास्ता नहीं है और काम हो गया। तो इस तरह से क्वेरी और रिप्लाई मैसेजेस फ्लो करते हैं कि AERP डोमेन में जब कभी कोई नेटवर्क डाउन होता है। अब देखो इसमें ना और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अब समझेंगे। सबसे पहली चीज, इस सिचुएशन में जब हम लोग क्वेरी भेज रहा है R1 R2 को, R2 R3 को, R3 आगे अपने राउटर्स को, R4 ने भी सबको भेजा, ठीक है। सो एवरीबडी गॉट अ क्वेरी। अभी उसका रिप्लाई आया, ठीक है जी, ये एक्टिव मार्क हो गए हैं नेटवर्क्स इन सभी की राउटिंग टेबल में। क्वेरी भेजने से पहले ये एक्टिव मार्क कर देते हैं, फिर क्वेरी भेज देते हैं। ये लोग फिर रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। कौन कर रहा है? R4 वेट कर रहा है R7 R8 से रिप्लाई वापस आने का। R3 अपने नेबर्स R5 R6 को क्वेरी भेज चुका है, उनसे रिप्लाई आने का वेट कर रहा है। R2 जो है वो R3 R4 से रिप्लाई आने का वेट कर रहा है। R1 जो है वो R2 से रिप्लाई आने का वेट कर रहा है। तो R8 R7 ने रिप्लाई भेजा R4 को, नहीं है साहब। R5 R6 ने R3 को भेजा। अब R3 ने R2 को रिप्लाई भेज दिया कि नहीं मिला साहब कोई राउट, कोई नेटवर्क, उस नेटवर्क के लिए कोई दूसरा राउट। R4 ने रिप्लाई R2 को भेजा, लेकिन वो पैकेट जी ड्रॉप हो गया रास्ते में, वो R2 के पास में नहीं पहुंचा। जो रिप्लाई R4 ने भेजा वो R2 को नहीं मिला। द रिप्लाई पैकेट गॉट ड्रॉप ड्यू टू सम रीजन। तो अभी क्या होगा? अभी R2 R1 को रिप्लाई नहीं भेजेगा, क्योंकि इसके सारे नेबर्स को जिनको क्वेरी भेजा था उनसे रिप्लाई आया नहीं। R3 से तो आ गया, लेकिन R4 से जब तक नहीं आएगा तो R1 जो है वो क्या कर रहा है? R1 जो है वो वेट कर रहा है, ठीक है। कितना वेट करते हैं साहब? ये 3 मिनट्स, 3 मिनट वेट करते हैं कि मैंने तुमको क्वेरी भेज दी, टाइमर चालू, 3 मिनट तक रिप्लाई भेज रहे हो तो भेज दो, नहीं तो मैं आपको रीसेट कर दूंगा, यानी नेबरशिप डाउन करके और दोबारा बनाऊंगा। तो नेबरशिप डाउन मतलब अभी R2 से R4 के बीच वाला जो ये लिंक है, इस लिंक पे क्वेरी का रिप्लाई नहीं आया, तो R2 क्या कर रहा है? R2 वेट कर रहा है 33 मिनट्स तक वेट किया, है ना। R4 से उसको रिप्लाई नहीं मिला, तो R2 R4 का नेबरशिप डाउन हो जाएगा और फिर से नेबरशिप बनने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो R2 विल लूज ऑल द नेटवर्क्स हियर। जो भी ये नेटवर्क्स है, ये सारे नेटवर्क्स R2 लूज कर देगा, ठीक है, क्योंकि नेबर डाउन कर देगा। नेबर डाउन करते ही इन तक रीचेबिलिटी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही R1 और R2, R1 भी तो वेट कर रहा है, R2 से भी रिप्लाई आया नहीं, तो R1 जो है वो अपना R2 से नेबरशिप डाउन कर देगा। तो R1 विल लूज ऑल दीज नेटवर्क्स जो भी R2 से आगे है ना। So this will be a very critical situation, and this is called as SIA, stuck in active. In EIGRP, this situation is called as stuck in active. ठीक है, एक्टिव स्टेट में स्टक हो गए जी, रिप्लाई नहीं आया तो वो एक्टिव में बैठे हैं, 3 मिनट वेट कर रहे हैं, रिप्लाई अभी भी नहीं आया तो रीसेट कर दिया नेबरशिप, assuming that there is something wrong with my neighbor. Right? So let's reset the neighborship. He's dead. I'm considering my neighbor dead if he is not responding, replying to my query. So ये सब होता था जब सिस्को का iOS वर्जन 12.0 तक। इसके बाद मतलब 12.0 से पहले, इसके बाद कुछ एनहांसमेंट्स किए कि जी ये तो बड़ी बेकार सिचुएशन है, मतलब यहाँ गलती किसकी हुई? गलती तो यहाँ हुई R4 और R2 के बीच के लिंक की, लेकिन इसको भुगतना पड़ा R1 और R2 की। भाई यहाँ तो सब सही चल रहा था,
फिर भी यहाँ पर क्या हुआ, नेबरशिप डाउन करी, है ना, कोई जरूरत ही नहीं थी फिर भी। तो बोला जी एक काम करो, ये सिचुएशन का कुछ समाधान लाओ। तो सिस्को जो है उसने इसमें एनहांसमेंट लाया, और एनहांसमेंट क्या लाया कि जी जब भी क्वेरी कर दी जाएगी उसके बाद ये 3 मिनट वाला टाइम चालू हो जाएगा कि हाँ भैया 3 मिनट में क्वेरी का रिप्लाई आना चाहिए। तो वो कहता है नहीं आया तो ये स्टक इन एक्टिव, मतलब नेबरशिप डाउन और रीसेट हो जाएगा। तो बोला नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, एक काम करेंगे, इसका आधा यानी 3 मिनट का आधा 90 सेकेंड 90 सेकेंड्स बाद मैं इसको एक SIA क्वेरी भेजूंगा, स्टक इन एक्टिव क्वेरी भेजूंगा कि भाई मैंने आपको पूछा था क्या हुआ, अभी आप 90 सेकेंड हो गए रिप्लाई दिए नहीं। तो R2 कहता वेट वेट वेट, आई एम स्टिल वेटिंग फ्रॉम रिप्लाई फ्रॉम माय नेबर, फॉर अ रिप्लाई फ्रॉम माय नेबर, सो वेट, आई एम अलाइव, आई एम आल्सो वेटिंग। तो R1 जो है वो वेट करता है, ठीक है चलो वेट कर, है ना। फिर वो क्या हो जाता है, टाइमर रीसेट हो जाता है, 3 मिनट वाला टाइम फिर चल, फिर 90 सेकंड बाद पूछता हाँ भैया क्या हुआ अभी। वो कहता है अरे भैया अब मैं वेट कर रहा हूँ, है ना। तो this enhancement in EIGRP is actually addressing this very long pending issue which we used to had in early days. तो ये जो stuck in active query भेजता है 90 सेकंड बाद, उसका ये stuck in active reply ऐसा ये रिप्लाई करता है, ठीक है। तो जिससे कि ये नेबरशिप जो है वो रीसेट होने से बच जाती है, ठीक है, और कम्युनिकेशन चालू रहता है। सो दिस इज एक्चुअली EIGRP's रूट फेलियर सिनेरियो। अगर रूट फेल हुआ किसी नेटवर्क के लिए, टोपोलॉजी टेबल इज द फर्स्ट थिंग जिसको वो देखता है, उसमें नहीं है तो पड़ोसियों से पूछता है क्वेरी करके। क्वेरी में भी अगर मान लो कोई जवाब आता है कि नहीं है तो उसको अपनी राउटिंग टेबल से निकाल देगा, और अगर है तो फिर वो दूसरा रूट जो है नेबर से पूछताछ करके और अपने टेबल में डाल लेगा। ओके, एनी डाउट्स? Just type yes or no. If there is a question, you can speak up or write it down. Yeah, Deepak, what is your question? Karan? No means आप लोगों को समझ नहीं आया? ये नेबरशिप परमानेंटली डिलीट करता है या कुछ रीसेट करता है? नहीं रीसेट करता है ये नेबर को डाउन कर देगा और फिर हेलो भेजेगा, फिर उधर से डेफिनेटली लिंक तो अप ही है तो हेलो आएगा, फिर नेबरशिप तो बन जाएगी, लेकिन वो डाउन टाइम आ गया ना नेटवर्क में। जब तक वो नेबर फिर से एस्टेब्लिश होगा तब तक राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेंगे तब तक। तो इन बिटवीन अगर नेटवर्क वापस अप हो जाता है तो क्वेरी वापस आ जाएगी भैया? अगर अप हो गया, अगर ये नेटवर्क अप हो गया, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, वापस इन दोनों के बीच में नेबरशिप बन गई, ठीक है, नेबर बन गए, इन्होंने एक दूसरे से डेटाबेस एक्सचेंज किया। डेटाबेस एक्सचेंज होने के बाद में क्या होगा, ये नॉर्मल EIGRP नेबर्स जो है, नॉर्मल EIGRP नेबरशिप में क्या करते हैं, अपना टोपोलॉजी टेबल जो है वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो R1 जो है वो R2 को भेजेगा, R2 R1 को भेजेगा। अब जो ये 100 नेटवर्क के लिए इसने क्वेरी किया था, वो क्वेरी का कोई सबूत बचा ही नहीं, क्योंकि नेबर डाउन हो गया ना। नेबर डाउन हो गया तो इसकी टेबल से पहले वो नेबर हट ही गया, तो उससे रिलेटेड जो सारे उसके पास में डेटाबेस में थे ना कि हाँ भाई मैंने ये क्वेरी इस नेबर को भी भेजी है, इसको भी भेजी है। अब जब नेबर ही नहीं है तो क्वेरी का क्या करेंगे, तो वो क्वेरी खत्म हो गई साहब, ठीक है ना। As soon as neighborship goes down, the query will also, he will remove all the evidences of that query from its table database. हाँ जी, और कोई आकाश, R2 R4 के बीच में भी SIA क्वेरी होगा, R2 R4 के बीच में भी SIA, हाँ बिल्कुल होगा साहब, बिल्कुल सबके बीच में होगा, है ना। दिस विल बी एवरीवेयर, R2 से R3 के बीच भी होगा, है ना, R2 से R4 के बीच भी, सब के बीच। एनी अदर डाउट? All right, so let's move to the next thing, EIGRP stub.
तो EIGRP स्टब क्या है? OSPF में आपने स्टब एरियाज के बारे में पढ़ा होगा CCNA में, है ना। स्टब मतलब फार एंड डिवाइस, जिसके आगे नेटवर्क का एज राउटर, मतलब उसके आगे कोई और नेटवर्क्स नहीं है तो उसको हम लोग स्टब बोल देते हैं, और कोई राउटर नहीं है तो जैसा कि आप इस सिनेरियो में देखे, अभी एक नेटवर्क डाउन हुआ, ठीक है, 100 नेटवर्क डाउन हुआ, वो 100 नेटवर्क के लिए कोई रास्ता दूसरा था नहीं, लेकिन फिर भी क्वेरी गई गई गई, सब जगह गई। कितना बड़ा नेटवर्क है ये छोटा सा नेटवर्क है। अगर मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे राउट्स होते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, सबनेट्स होते हैं, और कभी भी कोई भी इंटरफेस डाउन हो रहा है, कभी कोई नया नेटवर्क ऐड हो रहा है, दिस एंड दैट, तो ये जो क्वेरी वाला मैकेनिज्म है ये एक जने से, मतलब ये सबके पास जाता है, तो ये काम होता ही रहेगा। मतलब नेटवर्क डाउन हुआ नहीं कहीं और क्वेरी सबको भेज दी गई, अगर टोपोलॉजी टेबल में कुछ नहीं है तो बोला ये इसको थोड़ा सा कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? ऐसा जैसे इसी एग्जांपल में ले लो, इसमें क्या जरूरी था क्वेरी भेजना? नहीं जी, बिल्कुल जरूरी नहीं था। ये तो सब के पास में कोई और दूसरा रूट है ही नहीं, हमें दिख ही रहा है। तो बोला अच्छा, तो फिर क्या कर सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए? तो ये जो क्वेरी प्रोसेस है इसको कंट्रोल करने के लिए ही स्टब, EIGRP स्टब फीचर का यूज किया जाता है। जैसे मान लो हमारा ना ये हब राउटर है R2, है ना, ये ब्रांचेस है, ये ब्रांच राउटर है, इनके आगे ये जो है ये और छोटे सब ब्रांचेस है ना। तो अब इन सब ब्रांचेस के आगे कोई नेटवर्क एक्सपेंड हुआ ही नहीं, मतलब इनसे आगे कुछ है ही नहीं। तो ये जो राउटर्स है R5, R6, R7, R8, ये राउटर्स जो है इन पे मैं क्या कर सकता हूँ, इनको मैं EIGRP स्टब राउटर डिक्लेयर कर सकता हूँ। सबको मैं स्टब राउटर बना दूंगा। तो ये क्या करेंगे, ये राउटर्स अपने पड़ोसी यानी R4 को और R3 को एक जब हेलो भेजेंगे तो उसमें स्टब फ्लैग जो है उसको ऑन करके भेजेंगे, जिससे कि R3 और R4 को पता लग जाएगा कि साहब ये जो मेरे नेबर्स है R5, R6, R7, R8, दे आर स्टब राउटर्स। स्टब राउटर्स हैं यानी कि इनके आगे कोई और दूसरे राउटर्स नहीं है। तो अगर हमारे पास में कोई क्वेरी आई तो वो क्वेरी को हम इनके पास में फॉरवर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि इनके आगे रास्ता मिलेगा कहां से, ये तो वैसे ही आगे लटके हुए हैं, बस एज पे हैं। ठीक है, सॉरी। सो ये जो राउटर्स है ये अपना स्टब इन पे जैसे ही इनेबल करेंगे, ये इन्फॉर्म करेंगे R3, R4 को, और R3, R4 के पास कभी भी जब कोई क्वेरी आएगी तो वो इन स्टब राउटर्स को फॉरवर्ड नहीं करेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ EIGRP स्टब। तो आपका क्वेरी प्रोसेस, कितना क्वेरी निकला था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेरी टोटल निकले थे। तो 7 में से अभी कितना क्वेरी रहेगा? 1, 2, 3, सिर्फ 3 क्वेरी। 4 क्वेरी हमने जो अनवांटेड थी उनको हटा दिया, है ना। तो दिस इज हाउ एक्चुअली वी कैन कंट्रोल क्वेरी प्रोसेस। ये बाय डिफॉल्ट अनकंट्रोल्ड है, ये सब जगह जाएगी, लेकिन हम इसको EIGRP स्टब फीचर से कंट्रोल कर सकते हैं। Am I audible, guys? Yes, sir. Okay. Maybe my internet sometimes gives some. Okay. Yeah, it was some flickering around that, but it is fine now. Cool. All right. So the last one is EIGRP path manipulation. Path manipulation की जब हम लोग बात करते हैं तो let me remove this stuff. पाथ मैनिपुलेशन जो है ना, इट्स अ बिग टॉपिक यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक, नॉट बिग टॉपिक इन दैट वे, टाइम ज्यादा लेगा। लेट्स टेक दिस एज एन एग्जांपल। ओके, सो बाय डिफॉल्ट जो हम लोग बात कर रहे थे इन दिस सिनेरियो, this is the best path with metric 10,000. This is feasible successor with metric 20,000. This is another path with metric 30,000. यहां पर 2 नेटवर्क है आगे, ठीक है, 10.1.1.0/24 and 10.1.2.0/24।
बाय डिफॉल्ट इन दोनों नेटवर्क्स के लिए ट्रैफिक सारा इधर से जाएगा। ठीक है जी। मैं वेरिएंस वगैरह कोई लोड बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं। We are talking about an ideal scenario where with default configurations. So all the traffic will be sent towards R3. So whether it's for 10.1.1.0 or 2.0, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि 10.1.1.0 के लिए जो ट्रैफिक है वो तो जाए R3 से, और 10.1.2.0 के लिए ट्रैफिक है वो जाए वाया R2। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और इसे हम लोग अचीव कर सकते हैं यूजिंग पीबीआर, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग जो है वो हम लोग लगा सकते हैं, और उस पॉलिसी बेस्ड राउटिंग से हम उसको अचीव कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग? देखिए, हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं R1 पे कि भाई तेरे पास कोई भी ट्रैफिक आ रहा है पीछे से विच इज डेस्टिन्ड फॉर 10.1.1.0/24, तो तू उसको क्या कर दे, नेक्स्ट हॉप, लेट्स से इसका आईपी है 20.1, इसका आईपी है 20.2, तो मैं उसको बोल दूं तू कोई भी ट्रैफिक जो आ रहा है 10.1.1.0 के लिए उसको नेक्स्ट हॉप 20.2 के पास भेज दे। और अगर तेरे पास कोई भी ट्रैफिक आ रहा है 10.1.2.0 नेटवर्क के लिए, तो तू उसको नेक्स्ट हॉप, लेट्स से दिस इज 30.1, दिस इज 30.2, तो मैं कह दूं 30.2 नेक्स्ट हॉप के पास भेज दे। ये पॉलिसी मुझे डिफाइन करनी पड़ेगी, और इस पॉलिसी को मुझे इस राउटर पे लगाना पड़ेगा। लगाऊंगा कहां? मैं इस R1 की इस इंटरफेस पे, R1 का जो ये इंटरफेस है जिधर ट्रैफिक अंदर घुस रहा है, उस इंटरफेस पे इस पॉलिसी को लगाऊंगा, और फिर जो भी ट्रैफिक इस राउटर पे आएगा वो इस पॉलिसी से चेक होगा, और चेक होने के बाद में इस पॉलिसी के आधार पे अगर उसका डेस्टिनेशन ये है तो वो उसको 30.2 पे भेज देगा, और अगर डेस्टिनेशन ये सबनेट का है तो ट्रैफिक को 20.2 पे भेज देगा। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। Now how we will create this policy? इसके अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी यूज आएगा, जिससे कि हम लोग इन डेस्टिनेशन जो ये प्रीफिक्स है, डेस्टिनेशन जो नेटवर्क है उनको मैच करवाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम लोग पॉलिसी मैप बना के या पॉलिसी मैप से हम लोग इस राउटर के इंटरफेस पे लगा देंगे सर्विस पॉलिसी या पॉलिसी मैप, व्हाटएवर, पॉलिसी मैप, सॉरी, नॉट सर्विस पॉलिसी। So this is all about PBR. इन थ्योरी मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, ये जब लैब कर रहे होंगे ना तब अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको और एक्सप्लेन कर लेंगे, अभी इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। ऑलराइट, एनी डाउट इन दिस PBR कॉन्सेप्ट? है ना, कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर हमारे पास में मल्टीपल पाथ्स है और तो उनको हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। दिस कैन बी अचीव्ड यूजिंग रूट मैप्स एज वेल। राजेश, रूट मैप्स जो है वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना, वो भी देखेंगे हम लोग। बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं अभी, जैसे आपकी लिस्ट होती है, एक्सेस लिस्ट है ना, एक्सेस लिस्ट है, प्रीफिक्स लिस्ट है, ऑफसेट लिस्ट है, ऑफसेट लिस्ट, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट है, बहुत सारी, ये 4 तरह की तो ये लिस्ट ही होगी। अब इन लिस्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज एक्सेस लिस्ट, व्हाट इज प्रीफिक्स लिस्ट, व्हाट इज ऑफसेट लिस्ट, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, है ना। फिर हम लोग रूट फिल्टरिंग का भी काम करेंगे। रूट फिल्टरिंग मतलब कि यहाँ पर मेरे पास में ये जो दो नेटवर्क है 10.1.1.0 और 2.0, ये R5 को मालूम है, R5 ने R2 को बताया, R4 को बताया, R3 को बताया। मैं चाहता हूं कि ये R2 को बताया ही नहीं इस नेटवर्क के बारे में। क्या मैं फिल्टर कर सकता हूं कि ये जब अपडेट भेजे R5 R2 को तो ये वाला रूट उस अपडेट में से फिल्टर कर दे? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते। तो रूट फिल्टरिंग भी हम लोग करेंगे, है ना। लैब के टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीजें ये छोटी छोटी उठाएंगे और उसी समय करके निपटा देंगे। तो रूट फिल्टरिंग भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। ये ऑफसेट लिस्ट जो है जनरली हम इसको रिप के साथ यूज करते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको बताऊंगा, करके बताऊंगा, है ना, कैसे यूज की जाती थी।
मेट्रिक मैनिपुलेट करने के लिए रिप में, है ना, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे हम लोग। तो देर आर सो मेनी थिंग्स, है ना। फिर हम लोग मैप्स जो हैं जैसे पॉलिसी मैप, रूट मैप, क्लास मैप, ये मैप्स क्या हैं, इन मैप्स को कहाँ कहाँ यूज करते हैं, है ना। तो जब बीजीपी पढ़ेंगे ना तो इनका बड़ा एक्सटेंसिव यूज है पॉलिसी मैप्स का, स्पेशली रूट मैप्स का, ठीक है ना। तो या that can also be done. So any doubts still, no? Any questions? All right. Okay, so I'll give you a small introduction about this software GNS. Okay, so I hope most of you are already aware of this software, GNS3. Okay, so GNS3 is its name, and in this GNS3 you can actually use, आपके पास में ये लिस्ट देख रहे हैं, पूरा लिस्ट है, आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। There are so many router models available, ठीक है। routers है, CSR, iOS XR, this that. I have never used XR and these things on GNS, कभी यूज नहीं किया तो मालूम नहीं, बट जो हमारे लैब्स के लिए यूज करेंगे वो ISR ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ISR यूज कर लो, कोई सा भी जनरेशन हो। देन इसके अंदर और भी चीजें हैं जो ये सपोर्ट करता है, फ्रेम रिले राउटर, है ना, डेल का भी कुछ है, जूनिपर डिवाइसेस है, जूनोस आप डाल सकते हो, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं। इतना मैं कभी एक्सप्लोर किया नहीं। सो हम यहाँ से कुछ राउटर्स, okay, what is this? Let me create a new project. Okay, what this project is, CCNP lab demo. All right, so let me create a simple topology with few routers like R1, R2, R3, R4, ठीक है। ये 4 राउटर लगा के 5 राउटर लगा लो, दैट्स ओके, कितने भी लगा सकते हैं। आपका जो सिस्टम जिस पे आप चला रहे हो ये थोड़ा सा रिसोर्स इंटेंसिव है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि अपना GNS3 जब भी यूज करो तो एक आइडल पीसी सेटिंग होती है इसकी, उसको आप सेट कर लो। वो कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। कनेक्टिविटी कर लेंगे हम इनका कनेक्शंस। बाय डिफॉल्ट इन राउटर्स पे मेरे पास में ये सारे इंटरफेसेस है, ठीक है। फास्ट इथरनेट, मैनी फास्ट इथरनेट इंटरफेसेस, सीरियल 0, सीरियल 1, सीरियल 2, 3, 4 सीरियल इंटरफेस भी है। तो R1 के किसी भी इंटरफेस से सीरियल इंटरफेस ले लेता हूँ अभी फिलहाल, R2 का सीरियल 0/0, ठीक है। फिर R2 सीरियल 0/1 to R5 सीरियल 0/1, ठीक है। जिन्होंने CCNA किया है उनके लिए दिस इज जस्ट बच्चों का खेल है, यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। जिन्होंने नहीं पढ़ा है CCNA उनके लिए थोड़ी सी नहीं है ये सारी चीजें, बट आपको ये सीखना पड़ेगा। यू हैव टू try to explore the options whatever. So ये कनेक्टिविटी हम लोग कर दिए, ठीक है। इनके सारे सीरियल इंटरफेसेस के नाम इधर आ गए, ठीक है। whatever interfaces we are using now, which interface, कौन सा इंटरफेस था, this is serial 0/0, okay, so this is 0/0, ठीक है। इस लिंक पे जाएंगे तो ये दिखा देगा this is serial 0/1 and this is 0/2. Okay, so that way you will अच्छा ये भी देख लो,
0/0 है, ठीक है। हाँ, तो ये इंटरफेसेस वगैरह उल्टे मत लगा देना, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे फिर हम लोग अगर उल्टे आईपी एड्रेसेस वगैरह कॉन्फ़िगर कर दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम, ठीक है। सो वट एवर इट इज, यू कैन यूज दिस सॉफ्टवेयर। ऐसे ऐसे करके हम लोग टोपोलॉजी बना सकते हैं। और अब क्या करेंगे, अब किसी भी एक राउटर को, जैसे R2 को मैं जाके और स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो R2 देखो, ये इंटरफेसेस जो लिंक देख रहे ग्रीन हो गया, ठीक है। और अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं अभी इसके साथ एक आइडल पीसी करके ऑप्शन है, उस पे जाऊंगा। तो आइडल पीसी जो है, ये आपको एक वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। इट विल गिव यू लिस्ट ऑफ सम वैल्यूज। तो वो लिस्ट में से आप, अभी जैसे मुझे लिस्ट नहीं दे रहा, एक ही वैल्यू दे रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। सो व्हाट एवर आपको अगर लिस्ट दे तो उसमें से स्टार जिस वैल्यू के आगे लगा हो उसको सेलेक्ट कीजिएगा। नाउ टू एक्सेस दिस राउटर आई विल गो टू कंसोल, ठीक है जी। इसके कंसोल को एक्सेस करने के लिए राइट क्लिक कंसोल, और कंसोल पे जाके और हम लोग इस राउटर को कमांड लाइन के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। It's taking a little bit time, yeah. Okay, so this is R1's console, R2, whatever, ठीक है। R2 का कंसोल आ गया। conft do show IP interface brief। आप देखोगे अभी सारे जो इसके इंटरफेसेस है, वो सब इंटरफेसेस जो है उन पे आईपी जो है असाइन नहीं है, फ्रेश राउटर्स है। आप जाके आईपी वगैरह असाइन कीजिए, EIGRP का बेसिक टोपोलॉजी की बनाइए। ऐसा ही वेरिएंस कमांड को टेस्ट करके आइए, जिनका सीसी ने हो गया है उन लोगों से मैं ये कह रहा हूँ, वेरिएंस कमांड को टेस्ट करके आइए। और भी अगर कुछ कर सकते हैं, पाथ मैनिपुलेशन वगैरह, या फिर अभी जो मैंने बोला ना पाथ मैनिपुलेशन, तो वो हम लोग बैंडविड्थ और डिले जो है पैरामीटर्स, उनको चेंज करके भी अचीव कर सकते हैं। तो वो भी हम लोग देखेंगे लैब में। लैब हम करेंगे कल, आज की थ्योरी हम सिर्फ इतनी करेंगे। आई विल आस्क यू, आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू दिस थिंग्स, ट्राई टू डू सम बेसिक EIGRP labs and come back tomorrow so that it will become easy for you to understand the other things. So we'll start from scratch, we'll build the lab from scratch, but still it would be good if you have a little hands-on for EIGRP. So that's it guys for the day. Any doubts, any questions, any comments, any concerns? So we are planning to complete this topic tomorrow, क्योंकि कल जो कल तो नहीं, क्योंकि कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो कल लैब करेंगे और परसों इसको फिनिश करेंगे। सो होपफुली बाय डे आफ्टर टुमारो we'll finish it and then we'll start OSPF. So it will take another 2 days.